بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں ہوں اعجاز علی اور خوش آمدید کہتا ہوں آپ کو اپنے چینل سبق کہانی میں۔ مگر آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے آپ بھی ہمارا حصہ بن جائیں۔ چلتے ہیں آج کی کہانی کی طرف۔ بہت پرانی بات ہے۔ کسی شہر میں ایک بادشاہ تھا۔ جاہو ثروت میں اس کا کوئی ثانی نہیں تھا، لیکن تھا ذرا جھکے۔ ایک رات اس نے خواب دیکھا کہ ایک باغ ہے جس میں مور کے پروں کی شکل کے پھول کھل رہے ہیں۔ صبح اٹھ کر بادشاہ نے دربار لگایا۔ سارے نجومیوں، جوتشیوں اور خواب کی تعبیر بتانے والوں کو بلا کر اپنا خواب بیان کیا اور تعبیر پوچھی۔ سب سوچ میں پڑ گئے۔ پھر عرض کیا کہ جہاں پنا اس خواب کی تو کوئی تعبیر نہیں ہے اور ہر خواب کی تعبیر ہوتی بھی نہیں ہے، لیکن بادشاہ پر تو جھک سوار ہو گئے۔ یا تو خواب کی تعبیر بتاؤ یا ایسا پھول مجھے آنکھوں سے دکھا، ورنہ آج دربار برخاست نہیں ہوگا۔ صبح سے شام ہو گئی۔ درباری حیران پریشان بھوکے پیاسے بیٹھے تھے۔ کسی میں ہمت نہیں تھی کہ منہ سے بات بھی نکالے۔ بادشاہ نے ایک تھالی میں پان کا بیڑا بنوا کر رکھوا دیا تھا کہ جو باہمت یہ کام کر سکتا ہے بیڑا اٹھا لے، لیکن کون اپنی جان کا دشمن تھا کہ ناممکن کام کا بیڑا اٹھاتا۔ بادشاہ کی ایک ہی بیٹی تھی، نہایت حسین و جمیل، عقل مند، بہادر اور باہمت۔ جب اس نے دربار کا یہ رنگ دیکھا تو آ کر بیڑا اٹھا کر کھا لیا۔ بادشاہ دھک سے رہ گئے۔ بیٹی، یہ تو نے کیا کر دیا؟ شہزادی بولی، ابا جان، آپ نے اتنے لوگوں کو بھوکا پیاسا مارنے کا انتظام کر رکھا ہے۔ اس سے تو اچھا ہے کہ اکیلی میری ہی جان چلی جائے۔ یا تو آپ کو ایسا پھول لا کر دکھاؤں گی یا کبھی اپنا منہ نہیں دکھاؤں گی۔ دربار برخاست ہو گئے۔ اتنے لوگوں کے سامنے یہ واقعہ ہوا تھا کہ بادشاہ ہاتھ مل کر رہ گئے۔ رعایا کے سامنے عزت کا سوال تھا۔ ماں نے سنا تو کلیجہ پکڑ لیا۔ اکلوتی بیٹی بادشاہ کی ضد کی بھینٹ چڑھنے جا رہی تھی۔ اب یہ کہ شہزادی کی منگنی ملک یمن کے بادشاہ سے ہو چکی تھی اور سال بھر بعد شادی طے پائی تھی۔ محل میں تیاریاں شروع ہو چکی تھی کہ یہ مصیبت آ پڑی۔ تیر کمان سے نکل چکا تھا۔ شہزادی نے ماں باپ کو یقین دلایا کہ یا تو میں سال بھر کے اندر واپس آ جاؤں گی یا اگر مر گئی تو یمن کے بادشاہ سے معذرت کر لیجیے گا۔ غرض شہزادی نے مردانہ بھیس بنایا، تھیلا بھر کر اشرفیاں لی، تلوار لی اور کچھ کھانے پینے کا سامان لے کر اللہ کے بھروسے اپنے گھوڑے پر سوار نکل کھڑی ہوئی۔ جنگل جنگل، صحرا صحرا، بستی بستی سفر کرتی رہی۔ جس شہر یا بستی میں جاتی سرائے میں ٹھہرتی اور سرائے کے مالک سے پوچھتی کہ یہاں کوئی دیکھنے کے لائق جگہ تو نہیں، لیکن کہیں گلے مراد نہیں ملا۔ 9 ماہ کی مسافت کے بعد ایک شہر میں پہنچے جو بہت ہی خوبصورت اور سرسبز و شاداب تھا۔ جس سرائے میں ٹھہری وہاں کے مالک سے وہی سوال پوچھا۔ بوڑھا بولا، بیٹے، یوں تو یہ پورا شہر ہی بڑا خوبصورت ہے، لیکن یہاں کے بادشاہ کا ایک ذاتی باغ ہے جہاں سنا ہے کہ مور کے پروں جیسے پھول کھلتے ہیں، لیکن وہاں پرندہ پر نہیں مار سکتا، کڑا پہرا رہتا ہے۔ بادشاہ صرف اپنے خاص دوستوں کو ہی وہاں لے جاتے ہیں۔ شہزادی کو اپنی منزل تو مل گئی، لیکن سوال یہ تھا کہ اس باغ تک کیسے پہنچا جائے۔ شہزادی نے بوڑھے سے کہا، بابا، میں مسافر ہوں، روزگار کی تلاش میں مارا مارا پھر رہا ہوں، مجھے اپنے یہاں کام دے دو، مجھے کھانا پکانا بہت اچھا آتا ہے۔ بوڑھے نے کہا، بیٹا، میں خود غریب آدمی ہوں، تجھے کیا دوں گا؟ البتہ اگر کسی طرح تو بادشاہ تک پہنچ جائے تو تیری تقدیر بن سکتی ہے۔ یہاں کا بادشاہ بڑا عادل اور رعایا پرور ہے۔ ہر ماہ کی 9 چندی جو میں رات کو شہر میں بادشاہ سلامت کی سواری نکلتی ہے، مظلوموں کی فریاد اور ضرورت مندوں کی ضرورت سنتا ہے اور مرادیں دیتا ہے۔ اگر تو کسی طرح بادشاہ کو متوجہ کر لے تو تیرا کام بن سکتا ہے۔ شہزادی نے دل میں حساب لگایا، 9 چندی میں ابھی 15 دن تھے۔ اس نے بوڑھے سے پوچھا، بابا، اس ملک کا نام کیا ہے؟ بوڑھے نے جواب دیا، بیٹا، اس ملک کا نام یمن ہے۔ موجودہ بادشاہ پچھلے سال ہی اپنے والد کی موت کے بعد گدی پر بیٹھا ہے۔ شہزادی یمن کا نام سن کر پریشان سی ہو گئی، یعنی وہ اپنے ہی ہونے والی سسرال میں ہے اور اسے اپنے ہی منگیتر کو چھلنا ہے، لیکن دھن کی پکی تھی، ذرا نہیں گھبرائی۔ 15 دن تک اس نے بوڑھے کے سرائے میں ایسے ایسے مزیدار کھانے پکائے کہ اس کی سرائے کی شہرت دور دور ہو گئی اور بوڑھے کی آمدنی دگنی چوگنی ہو گئی۔ بوڑھا دعائیں دیتے نہیں تھکتا تھا۔ وہ بادشاہ کی بیٹی تھی، ہر فن میں طاق تھی،
नौचंदी को शहजादी ने बड़ी मोहब्बत और लगन से नान सुल्तानी पकाई। ऐसी दलफरेब और जायकादार के देखने वाले की नजर ही न हटती थी। खुद साफ सुथरा लिबास पहनकर ख्वान पोश लेकर रास्ते में खड़ी हो गई जिधर से बादशाह की सवारी आने वाली थी। सवारी आई तो उसने निहायत अदब से सलाम करके तोहफा पेश किया। बादशाह की नज़र तो उसके हसीन चेहरे और महजब अंदाज के जैसे असीर हो गई। बादशाह ने तोहफा कबूल करके ताकीद की कि यह हमारे दस्तरखान पर पेश की जाए और अजनबी लड़के को इनाम देना चाहा, लेकिन उसने दस्त बस्तार की कि जहां पना का इकबाल बुलंद हो, मुझे इनाम नहीं नौकरी चाहिए। परदेसी हूं और तलाश मुआश में दर बदर हूं। बादशाह ने अगले दिन दरबार में बुलाया और बावर्ची खाने का दारोगा मुकर्रर कर दिया, लेकिन बादशाह तो उसके ऐसे गर्विदा हुए कि हर वक्त साथ रखने लगे। शतरंज हो या घोड़सवारी हो या तलवारबाजी, उसके जितने जौहर खुलते बादशाह उतने ही उसके कायल हो जाते। ये सब था, लेकिन न जाने क्यों एक खलश सी थी कि ये लड़का जो दिखता है वो है नहीं। एक दिन बादशाह ने अपनी माँ से कहा कि अम्मी जान, मैंने जो नया लड़का मुलाजिम रखा है उसे देखकर ऐसा लगता है कि हाथ जनाना, पाँव जनाना, भेस मर्दाना है। माँ ने कहा, यह कौन सी मुश्किल बात है, बहुत सी ऐसी आजमाइशें हैं जो हकीकत का पता दे देंगी। ऐसा करो कि एक बाजार लगवाओ, एक तरफ हथियारों की दुकानें हों और एक तरफ जेवरात की, फिर उसे अपने साथ लेकर जाओ। अगर लड़की है तो बेख्तियार जेवरात की तरफ देखेगी और अगर लड़का है तो हथियारों पर नजर जाएगी। चुनाचे बादशाह ने ऐसा ही बाजार लगवाया और नौजवान को लेकर सैर के लिए निकले। बाजार में पहुंचकर शहजादी समझ गई कि यह उसका इम्तिहान है। उसने जेवरात की तरफ रुख तक नहीं किया, बराबर हथियार देखती रही और उनकी तारीफ करती रही। आखिर बादशाह को कहना पड़ा, भाई एक नज़र उधर भी तो डालो। उस पर वो पटाख से बोल, क्या हुजूर, आप भी औरतों की तरह जेवर दिखा रहे हैं? इधर देखिए, ये मर्दों के जेवर हैं। बादशाह अपना सा मुंह लेकर रह गए। महल में पहुंचे तो माँ ने पूछा क्या हो। बादशाह ने हाल बयान कर दी। अम्मा बोली, बेटा वो लड़का ही होगा। बाद लड़के दाढ़ी मूछ निकलने से पहले लड़की जैसे लगते हैं, लेकिन बादशाह को तो वही पेच। नहीं अम्मी जान, हाथ जनाना, पाँव जनाना, पेश मर्दाना। अम्मा ने कहा, अच्छा एक आजमाइश और है, खाने में बेहद मिर्चें डलवाओ। अगर लड़की है तो हाय हाय करने लगेगी और लड़का है तो चाहे आंखों से पानी बहे लेकिन हाय हाय नहीं करेगा। अगले दिन बादशाह ने बावर्ची को बुलाकर हुक्म दिया कि आज खाने में बेतहाशा मिर्च होनी चाहिए। शहजादी तो थी ही बावर्ची खाने में। उसे पता चला तो समझ गई कि फिर मेरा इम्तिहान है। टहलती हुई महल के बाहर निकली। खाने से आधा घंटा पहले डॉक्टर से अपने मुंह में सुन करने की दवाई लगवा आई। दस्तरखान बिछा। बादशाह ने पहला निवाला ही लिया था कि हाय हाय करने लगे, जबकि वो आराम से मजे लेकर पूरा खाना खा गए। न मुंह से हाय निकली और न आंख से आंसू। उल्टा बादशाह से बोली, हुजूर क्या आप औरतों की तरह हाय हाय कर रहे हैं? जनान खाने में पहुंचकर बादशाह ने अम्मा को सारी रिपोर्ट दी। अम्मा ने फिर समझाया, बेटा वो लड़का ही है, तुम्हें वहम हुआ है। लेकिन बादशाह को वही रट, हाथ जनाना, पाँव जनाना, भेस मर्दाना। अम्मा ने कहा, एक आजमाइश और है और ये आखिरी है। तुम बेले चमेली के फूलों की सेज बनवाओ और उस पर उसे सुलाओ। अगर लड़की है तो फूल बिल्कुल मुरझा जाएंगे और अगर लड़का है तो उनमें कुछ ताजगी बाकी रहेगी। बादशाह ने माली को 2 फूलों की सेजें बनाने का हुक्म दिया और शहजादी से कहा, आज रात हम लोग बाग में सोएंगे। शहजादी ने फूलों की सेज बिस्तर पर सजी देखी तो फौरन समझ गई कि माजरा क्या है। उसने माली को एक अशरफी दी कि बिल्कुल ऐसी ही एक सेज मेरे लिए भी बना कर लाओ और बाग में बिस्तरों के करीब झाड़ी में छुपा दे। माली ने ऐसा ही किया। रात को बादशाह तो सो गए, लेकिन शहजादी जागती रही। फजर से कुछ पहले उसने अपने बिस्तर से बासी फूलों की सेज हटाकर कुएं में डाल दी और ताजे फूलों की सेज बिछाकर आराम से सो गए। 1 घंटा गुजरा होगा कि फजर का वक्त हो गया। बादशाह उठे और उसे भी जगाया। फिर दोनों सेजें लिए हुए अम्मा के पास पहुंचे। बादशाह अपनी सेज पर रात भर सोए थे। फूल बसक गए थे, बासी हो गए थे, लेकिन दूसरी सेज तो बिल्कुल ताजी थी। अम्मा ने कहा, बेटा अब जिद छोड़ दो, वो लड़का ही है। बादशाह चुप हो गए। शहजादी को जब इत्मीनान हो गया कि बादशाह पूरी तरह उस पर एतबार करने लगे हैं, तो एक दिन वो बोली, बादशाह सलामत, मैंने सुना है कि आपके एक बाग में मोर के परों जैसे फूल खिलते हैं। आपने मुझे आज तक नहीं दिखाया। बादशाह शर्मिंदा हो गए। फौरन उसे लेकर बाग में पहुंचे। बाग क्या था, गोया जन्नत जमीन पर उतर आई थी। हर तरफ मोर के पंखे जैसे फूल लहलहा रहे थे। शहजादी ने जी भर के तारीफ की। बोली, मेरा जी चाहता है कि रोज आऊं।
बादशाह ने कहा, तो आ जाया करो, किसने रोका है? शहजादी बोली, लेकिन यहाँ तो कड़ा पहरा है। बादशाह ने कहा, तुम्हारे लिए कोई पाबंदी नहीं है, जब चाहो आ सकते हो। पहरेदारों को बुलाकर कहा, यह हमारे मुसाहिब हैं, उन्हें बाग में आने से न रोका जा। शहजादी की तो दिली मुराद मिल गई। एक रात मौका पाकर बाग से 2 फूल तोड़ ली और कपड़ों में छुपा कर लिया। उसी रात को जब सब सो गए और पहरेदार भी ऊँघ गए, तो उसने बादशाह के नाम एक रुक्का लिखा और उसे अपने बिस्तर पर रखकर महल से निकला। सराय में उसका वफादार घोड़ा बंधा था। उसने घोड़े को एड़ लगाई और यमन की सरहदों से दूर निकला। सिपाही उसे बादशाह के साथ 12 देख चुके थे, इसलिए किसी ने नहीं रोका। अगले दिन सुबह बादशाह ने अपने मुसाहिब को याद किया तो गुलाम ने लाकर रुका दिया। लिखा था, मैं फला मुल्क की शहजादी आप ही मंगेतर हूँ। आपने बड़ी बड़ी आजमाइशें की लेकिन पहचान नहीं पाई, लेकिन मैं उसका बदला जरूर लूंगी। जब तक आपकी 5 तलाकें नहीं करवा दूं, आपके पास नहीं आऊं। बादशाह ने पढ़ा तो गुस्से से बेकाबू हो गया। फौरन अम्मा को लाकर रुका दिखाया। देखा, मैं कहता था ना कि ताज में कुछ काला है, लेकिन आप मानने को तैयार ही नहीं हुई। वो सबको चूना लगा गई और ऊपर से धमकी भी दे गई है। मैं भी कसम खाता हूं कि जब तक उसका 2.5 चिल्लू खून नहीं पी लूं, चैन से नहीं बैठूंगा। आप फौरन उसके घर पैगाम भेजें कि हम इस माह बारात लेकर आ रहे हैं। उधर शहजादी की वापसी की खुशियां ही मनाई जा रही थी कि यह पैगाम पहुंचा। शहजादी समझ गई कि उससे बदला लेने की साजिश है। एक तरफ महल में जोर शोर से शादी की तैयारियां हो रही थी और उधर शहजादी ने खुफिया तौर पर शाही बढ़ई को बुलाकर 100 अशरफियां दी और कहा कि जल्दी से जल्दी एक लकड़ी का दादम गुड़िया बनाओ, जो अंदर से खोखली हो और अंदर सामान रखने का खाना और एक आदमी के खड़े होने की जगह हो। किसी को कानो कान खबर नहीं होनी चाहिए। गुड़िया तैयार करके मेरे कमरे के तहखाने में छुपा दो। शादी से एक दिन पहले उसने मैदे और शहाब से गूंथ कर औरत का पुतला बनाया और उसके पेट में सुर्ख रंग का शीरा भर दिया। अपनी राजदार कनीज को हिदायत कर दी कि रुखसती के वक्त उसे दुल्हन बनाकर पालकी में बिठा देना, लेकिन खबरदार किसी को पता न चले। शानदार बारात आई, धूमधाम से शादी हुई। रुखसती भी धूमधाम से हुई। ऊँटों और छकड़ों पर दहीज, कनीजें, गुलाम, कर्ज, पूरा काफिला चला। शहजादी खुद उस काठ की गुड़िया में छुप गई और जिस रास्ते से बारात की वापसी थी वहां जाकर पेड़ के पीछे खड़ी हो गई। वो जानती थी कुछ न कुछ होकर रहेगा, और वही हुआ। बादशाह गुस्से में आग बगोला थे। आधे रास्ते में पहुंचकर सब बाजे गाजे और दहेज को लौटा दिया और बारातियों से कहा कि वो अपनी राह ले। कहारों से कहा, पालकी रख दो और जाओ। किसी को कुछ पूछने की हिम्मत नहीं हुई। शहजादी ने पहले ही माँ बाप से कह दिया था कि अगर सामान लौटाएं तो चुपचाप रख लें, फिक्र न करें। जब सब लोग चले गए तो बादशाह गुस्से में भरे हुए आए और दुल्हन के पेट में खंजर भोंक दिया। लाल लाल शरबत उबलने लगा तो बादशाह ने अपनी कसम पूरी करने के लिए 2.5 चिल्लू भरकर पिया और बोले, कमबख्त का खून भी मीठा था। कुछ अफसोस, कुछ निदामत में घोड़े पर सवार होकर धीरे धीरे चले तो पीछे से खटखट खटखट की आवाजें आई। मुड़कर देखा कि लकड़ी की एक आदम औरत चली आ रही है। जंगल, बयाबां, हर तरफ सन्नाटा, ऊपर से लकड़ी की पीछा करती औरत। बादशाह को थोड़ा सा डर भी लगा। डपट कर पूछा, कौन है तू और मेरा पीछा क्यों कर रही है? काठ की गुड़िया बोली, बादशाह सलामत, मेरा नाम टिनमिन है। मैं शहजादी का खिलौना थी, उनका जी बहलाती थी। आपने मेरी शहजादी को तो मार दिया, अब मैं कहाँ जाऊँ? मैं तो आपके साथ ही जाऊंगी। बादशाह ने कहा, नहीं, मेरे साथ आने की कोई जरूरत नहीं, जाओ। लेकिन टिनमिन नहीं मानी। इसी तरह डांटते डिपटते आखिर अपने मुल्क पहुंच गए। सारा शहर सजा हुआ था। बादशाह और मलिका के इस्तकबाल की तैयारियां हो रही थी। बादशाह को यूं अकेला आता देखकर सब परेशान हो गए। अम्मा ने पूछा, दुल्हन कहाँ है? बादशाह बोले, मार आया, रास्ते में कसम भी तो पूरी करनी थी। अम्मा ने सर पकड़ लिया। तभी ठटक की आवाज आई। देखा तो लकड़ी की देवदात गुड़िया खड़ी है। अम्मा ने डरकर बादशाह से पूछा, ये किसे ले आए हो? बादशाह बोले, जाने कौन बला है, पीछा ही नहीं छोड़ती। गुड़िया बोली, आदाब बेगम साहिबा, मेरा नाम टिनमिन है, मैं शहजादी का खिलौना थी। बादशाह सलामत ने मेरी शहजादी को तो मार दिया, अब मैं कहाँ जाऊँ? बादशाह बोले, मैं तुझे भी तोड़ ताड़ कर फेंक दूंगा। अम्मा ने डांट पिलाई, खबरदार उसे हाथ भी नहीं लगाना, बहू तो आई नहीं, अब इससे मेरा दिल ही बहलेगा, उसे रहने दो। इस तरह टिनमिन बादशाह सलामत की अम्मा की दोस्त बन गए। दिन भर उनसे बातें करती, किस्से कहानियां सुनाती, सलाह मशवरे देती। अम्मा जान को भी उसकी आदत पड़ चुकी थी। रात को जब सब सो जाते तो शहजादी काठ में से निकल कर जाती। खाने पीने का सामान दिन भर के लिए अपने खाने में रखती, कमरा बंद करके थोड़ी देर सो जाती। सुबह के करीब वापस अपने काठ में घुस जाती।
6 महीने गुजर गए तो टिनमिन ने अम्मा जान से कहना शुरू किया, बेगम साहब, बादशाह सलामत की शादी कर दीजिए ना। इतने बड़े महल में आप कनीजों के साथ तन्हा रहती हैं। बहू आ जाएगी तो कुछ रौनक होगी। पहले तो अम्मा जान मना करती रही, बेटे को पहली बीवी के मारने पर बुरा भला कहती रही, आखिर मान गए। अपने ही एक वजीर की बेटी से रिश्ता तय कर दी। शादी की तैयारियां होने लगी। जब शादी में 2 दिन रह गए तो टिनमिन बोली, बेगम साहिबा, शादी का दिन आ गया, इजाजत हो तो मैं भी नदी पर जाकर अपना काट धोआऊं। अम्मा जान बोली, हे तुम कैसे धोओगी, निगोड़ी लकड़ी की गुड़िया, मैं किसी कनीज से कहती हूँ वो धो देगी। नहीं नहीं बेगम साहिबा, मैं किसी को हाथ नहीं लगाने दूंगी। मेरा कोई कल पुर्जा टूट गया तो मुसीबत हो जाएगी। मेरी शहजादी भी नहीं है जो ठीक करवा दे। आप तो बस थोड़ा बेसन और चमेली की खली मेरे हाथ पर रख दे, मैं खुद ही नहा लूंगी। अम्मा जान मान गई। टिनमिन खटपट करती नदी के एक सुनसान किनारे पर पहुंची, काठ की गुड़िया झाड़ियों में छुपा दी, खुद बाहर निकलकर नहाई, श्रृंगार किया, कपड़े बदले और लड़की वालों के यहाँ पहुंच गए। लड़की वालों ने हाथ हाथ लिया, समधन आई समधन आई। शहजादी बोली, ना भाई मैं समधन नहीं पड़ोसन हूँ, आपकी बेटी की शादी है इसलिए चली आई। औरतें कहने लगी, पड़ोसन कितनी खूबसूरत है, उनकी आंखें तो देखो कैसी जगमगा रही हैं जैसे हीरे की कनी। शहजादी बोली, ए बहन, मेरी आंखें तो इतनी जरा जरा सी थी जिनमें हर वक्त पानी और कीचड़ बहता रहता था। वो तो मेरी माँ को किसी ने बताया कि नील की सलाइयाँ आंखों में फेर दो। उस वक्त तो जरा तकलीफ हुई, फिर जो मेरी आंखें चमकी हैं तो तुम देख ही रही हो। औरतों में कुसर पुसर होने लगी। हम भी अपनी बेटी की आंखों में नील की सलाइयाँ फेर लेंगे। आखिर बादशाह की मलिका बनकर जा रही है, उसे भी हसीन होना चाहिए। शहजादी तो रुखसत लेकर वापस चली गई और खटखट करती महल में पहुंच गई। और उधर उन जाहिल औरतों ने नील की सलाइयाँ मंगाकर लड़की की आंखों में फेर दी। लड़की दर्द से तड़पने लगी, आंखों से खून जारी हो गई। डॉक्टर हकीम दौड़ने लगे। उसी असना में बारात आई और निकाह हो गए। रुखसती का वक्त आया तो पता चला कि लड़की तो अंधी है और उसकी हालत भी बहुत खराब है। बादशाह गुस्से से लाल पीले होने लगे। मेरी रियाया होकर मुझसे ही धोखा, तलाक दी मैंने इस लड़की को, तलाक तलाक तलाक। बारातियों को हुक्म हुआ, वापस चलो। अम्मा जान बहू के इंतजार में बैठी थी। बादशाह को अकेला आता देखकर धड़क गई, अब क्या हुआ, दुल्हन कहाँ है? बादशाह गुस्से से बोले, अंधी बीमार लड़की से शादी कर दी मेरी, तलाक दे आया। अम्मा जान ने सर पकड़ ली, तेरी किस्मत में लगता है बीवी नहीं है। एक को मार आया, एक को तू तलाक दे आया। बादशाह बोले, यहाँ शौक किसको है, मत कीजिएगा आइंदा शादी। टिनमिन अम्मा जान के कान भरती रहती। 5-6 महीने गुजरे कि टिनमिन फिर बादशाह की शादी का तकाजा शुरू कर दे। अम्मा बोली, रहने दो टिनमिन, अब नहीं करनी मुझे किसी लड़की की तकदीर खराब। टिनमिन कहने लगी, ए बेगम साहब, अल्लाह अल्लाह कीजिए, अब इसमें बादशाह सलामत का क्या कसूर, क्या अंधी लड़की ले आते। और मेरी शहजादी भी अल्लाह बख्शे थी तो मेरी मालिका, लेकिन मजाज की ऐसी तेज कि बादशाह को धोखा दिए। भला कौन मर्द बर्दाश्त करता, अच्छा हुआ मार दिए। घर से टिनमिन ने इतनी जान खाई कि अम्मा राजी हो गई। आपके किसी अमीर की लड़की देखी, अच्छी तरह दिखवा लिया तो शादी की तारीख पक्की कर दी। शादी में 1 दिन रह गया तो फिर टिनमिन काट धोने के बहाने निकली और समधियाने पहुंच गए। बड़ी खातिर मुदारात हुई। दुल्हन की अम्मा बोली, देखो तो पड़ोसन के बाल कितने लंबे, घने और चमकदार हैं। हम अपनी बेटी के तो 50 चीजें आजमा के थक गए, बढ़ते ही नहीं है। टिनमिन बोली, ए बहन, मेरे बाल तो इतने से सूखे मोटे झाड़ू फिरे थे कि क्या बताऊं। मेरी माँ ने 50 चीजें लगाई, फिर कुछ नहीं हुआ। फिर आपके बाल इतने खूबसूरत कैसे हुए? दुल्हन की बड़ी बहन ने पूछा। अरे क्या बताऊं, एक फकीर साहब ने बताया कि इसका सर मूंढ दो। लाल चूटियों के अंडों को पीस के उसमें फकीर साहब की दी हुई बहबूत मिलाकर रात को सर पर लगाई। सुबह उठी तो ये लंबे चमकदार बाल लहरा रहे थे। दुल्हन की अम्मा हाथ मलकर बोली, लाल चूटियों के अंडे तो मिल जाएंगे, बरसात का मौसम है, लेकिन फकीर साहब की बहबूत कहाँ से ला? टिनमिन ने झट अपने बटवे से एक पुड़िया निकाल कर दी, ये लो, बची हुई बहबूत मेरे पास है, अगर आपकी बेटी का भला हो जाए तो क्या कहना। दुल्हन वालियों का ढेरों शुक्रिया वसूल करके टिनमिन तो अपने घर सुधारी। उन लोगों ने बेचारी दुल्हन के सर पर उस तरह फेर कर रात को लेप लगाया है तो दुल्हन दर्द और खुजली के मारे रात भर तड़पी और सुबह सवेरे सर पर बड़े बड़े आबले उभर आए। बारात का दिन था, जैसे तैसे निकाह हुआ। बादशाह के जासूस ने जाकर बादशाह के कान में कहा कि दुल्हन न सिर्फ गंजी है बल्कि उसके सारे सर पर जख्म पड़े हैं और हकीम कहते हैं कि उसके सर पर कभी बाल नहीं उगेंगे। ये सुनना था कि बादशाह मारे गुस्से के सेहरा वेहरा नोच कर
کھڑے ہو گئے اور طلاق دے کر واپس محل میں چلے آئے۔ اماں جان نے سنا تو ہزاروں سلواتیں سنا دی۔ بادشاہ بھی زد تھے، آپ کسی بندریا سے میرا نکاح پڑھوا دیں اور میں لے آؤں، کیا چاہتی ہیں آپ؟ خیر بادشاہ کی اماں نے تحقیق کروائی تو پتہ چلا کہ واقعی بات سچ تھی۔ دل محسوس کے رہ گئے، اللہ کی مرضی سمجھ کر چپ تو ہو گئے لیکن بہت ہی بد دل تھی۔ وقت گزرتا گیا، بات پرانی ہو گئی تو ٹن من نے پھر بادشاہ کی شادی کے تقاضے کرنے شروع کیے۔ پہلے تو اماں جان نے صاف انکار کر دیا لیکن پھر وہ راضی ہو گئے۔ کسی اور امیر کی بیٹی دیکھی گئی، سب ہی ڈرے ہوئے تھے لیکن بادشاہ کے گھر سے پیغام آئے تو انکار کی کہاں گنجائش۔ شادی کی تیاریاں شروع ہو گئی۔ حسب معمول شادی سے 2 دن پہلے پھر ٹن من اپنے کارڈ دھونے گئی اور دلہن والوں کے یہاں پہنچی۔ سب نے ہاتھوں ہاتھ لیا، سب بہت ڈرے ہوئے تھے۔ ٹن من نے بتایا دراصل بادشاہ سلامت کو بے حسین لڑکی چاہیے، لڑکی میں کمی ہوتی ہے تو وہ طلاق دے دیتے ہیں۔ دلہن کی چچی بولی لڑکی تو ہماری بھی خوبصورت ہے، بس ذرا دانت ٹیڑھے میڑھے ہیں۔ پڑوسن آپ کے دانت تو موتیوں کی طرح جڑے ہوئے ہیں، آپ ہی کوئی نسخہ بتائیے، ابھی تو 2 دن ہیں، ہم بھی کچھ کوشش کر لیں۔ ٹن من بولی ہائے میں کیا بتاؤں، میرے دانت تو ایسے خراب تھے کہ بس چھوٹے چھوٹے چوہے جیسے پیلے، اور اوپر کا دانت تو ہونٹوں پہ رکھا رہتا تھا۔ میری اماں ایک فقیر صاحب کے پاس لے کر گئے، بڑے پہنچے ہوئے تھے۔ انہوں نے ایک جادوئی منجن دیا اور کہا کہ آگے کے 8 دانت اکھاڑ کر رات کو یہ منجن لگا۔ میری ماں نے ایسا ہی کیا۔ تکلیف تو بہت ہوئی لیکن اگلے دن صبح جادو کے زور سے سارے دانت دوبارہ نکل آئے اور ایسے خوبصورت۔ دلہن کی اماں بولی لیکن وہ فقیر اور وہ منجن ہمیں کہاں ملے گا؟ ٹن من نے جھٹ بٹوے میں سے منجن کی پڑیا نکال کر دی، یہ لو میرا بچا ہوا منجن، تمہارا بھی بھلا ہو۔ ٹن من تو خاندان کو احسان کے بوجھ تلے چھوڑ کر چلی آئی اور ان لوگوں نے اسی رات لڑکی کے دانت اٹھوا کر خونم خون منہ میں منجن مل دیا۔ لڑکی بیچاری کا سارا منہ سوجا ہوا اور تکلیف سے جان نکلی جا رہی تھی، لیکن بات چھپائی گئی۔ نکاح ہو گیا۔ کھانا کھا کر جب رخصتی کا وقت ہوا تو بادشاہ کی خبری نے بادشاہ کو دلہن کے احوال سے آگاہ کیا۔ بادشاہ کا غصے سے برا حال، تماشا بنا کر رکھ دیا ہے، مجھے میری ہی رعایا نے طلاق دے کر چلے آئے۔ اماں جان کو رخصتی کی خبر مل چکی تھی، وہ دروازے پر دلہن کے استقبال کے لیے کھڑی تھی کہ بادشاہ غصے میں بھرے ہوئے اکیلے داخل ہوئے۔ اب کیا ہوا؟ اماں نے دہل کر پوچھا۔ شادی کا نام مت لیجیے گا، اب میرے آگے شہر بھر کی جتنی اندھی گنجی جان طلب لڑکیاں ہیں آپ نے میرے ہی نصیب میں لکھ دی ہیں۔ اگلے روز اماں کو پتہ چلا کہ بادشاہ صحیح کہہ رہے تھے۔ انہیں غصہ بھی آیا اور بیٹے کے لیے افسوس بھی ہوا، لیکن اب کیا کیا جا سکتا تھا؟ اماں ٹن من کے سامنے اپنے دل کے پھپھولے پوڑتی اور ٹن من کمال ہوشیاری سے مرہم رکھتی۔ اس دفعہ ٹن من کو اماں بیٹے کو شادی پر راضی کرنے میں پورا سال لگ گیا۔ اب کہ جس امیر کے گھر میں رشتہ طے ہوا وہاں اماں جان خود جا کر لڑکی کو دیکھ کر آئی، ہر طرف سے ٹھوک بجا کے دیکھا۔ بادشاہ نے کہہ دیا تھا آپ کی خاطر میں راضی ہوا ہوں، لیکن یہ آخری دفعہ ہے، اس کے بعد میں کوئی تماشا نہیں ہونے دوں گا۔ شادی سے 2 دن پہلے ٹن من اپنے کارڈ دھونے گئی اور دلہن والوں کے یہاں جا پہنچی۔ آپ کے اس نے خود ہی بتا دیا کہ میں بادشاہ سلامت کی پڑوسن ہوں، محل میں میرا آنا جانا ہے۔ میں نے سوچا آپ کو ان کے یہاں کے رسم و رواج بتاؤ۔ سمدھیانے کی ساری عورتیں خاطر میں بچ بچ گئی۔ بہت اچھا کیا پڑوسن آپ نے، ہم تو بہت ڈرے ہوئے تھے، سنا ہے بادشاہ 4 طلاقیں دے چکے ہیں۔ پڑوسن بولی دراصل بادشاہ سلامت کو اپنے رسم و رواج بہت عزیز ہے، لوگوں نے ان کے رواجوں کے مطابق ان کی اور بارات کی توازی نہیں کی، اس لیے وہ ناراض ہو گئے۔ تم جانو بادشاہوں کے مزاج، ناراض ہو کر طلاق دیا۔ اب آپ لوگ جیسا میں بتاؤں ویسا ہی کریں۔ اچھا بتائیے بارات کے استقبال کے لیے کیا کیا انتظام ہے؟ لڑکی والوں نے بتایا کہ بادشاہ سلامت کے لیے اشرفیوں اور ہیروں کا ہار اور باراتوں کے لیے گلاب کے پھولوں کے ہاروں کا انتظام ہے، اور کھانے میں ہر قسم کے مغلئی کھانوں کو پکانے کے لیے دور دور سے باورچی بلائے گئے ہیں۔ ٹن من بولی یہی تو سب سے بڑی غلطی آپ لوگ کرنے جا رہے تھے۔ بادشاہ کے یہاں قاعدہ ہے پہلے دن جب دولہا آئے تو اسے مٹی کی ہانڈیوں میں سوراخ کر کے اس کا ہار پہنایا جائے، اور باراتیوں کو ٹوٹے ٹھیکروں کا ہار پہنائے، اور کھانے میں مٹی کے کنڈوں میں نمکین دلیا پیش کیا جائے۔ مٹی کے برتنوں کو بادشاہ کے خاندان میں بڑا مقدس سمجھا جاتا ہے۔ دوسرے دن بھلے ہی آپ انہیں ہیرے جواہرات کے ہار پیش کریں اور لذیذ کھانے کھلائیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ لڑکی والے پہلے تو حیران ہوئے، پھر شکریہ ادا کرتے نہ تھکتے تھے کہ پڑوسن آپ نے تو ہماری آنکھیں کھول دی، ہمارے اوپر احسان کیا یہ سب بتا کر، ورنہ ہماری لڑکی بھی طلاق پا کر گھر میں بیٹھی رہتی۔ اپنے مشن کی کامیابی کے یقین کر لینے کے بعد ٹن من دعائیں لیتی ہوئی واپس محل میں آ گئے۔ دھوم دھام سے بارات چڑھی۔ جیسے جیسے باراتی شادی کے حال میں داخل ہوتے انہیں
टोटे ठीकरों का हार पहनाया जाता। हर एक हैरान होकर पूछता ये क्या है। पहनाने वाले कहते उन्होंने अदब से कहा हुजूर आप ही के यहाँ की रीत है। आखिर में बादशाह सलामत दाखिल हुए तो होने वाले सुसर ने मिट्टी की हांडियों का हार बड़े अदब से उनके गले में डाल दिया। बादशाह हक तक रह गए। पूछा यह क्या है। उन्होंने अदब से कहा हुजूर आप ही के यहाँ की रीत है। बादशाह ने गुस्से से हार उतार कर जमीन पर दे मारा। साथ ही सारे बारातियों ने भी यही किया। सारा पिंडाल टोटे ठीकरों से भर गया। लड़की वाले समझे शायद ये भी कोई शगुन होगा। बादशाह को गुस्सा तो बहुत आया, लेकिन अम्मा जान की धमकियों और कस्मों के बारे में सोचकर खून का घूंट पी कर रह गए। खैर निकाह हो गया। खाने के लिए दस्तरखान बेचा। हर बाराती के आगे मिट्टी का कूंडा लाकर रखा गया और उसमें गरम गरम पतला दलिया डाला जाने लगा। जो भी पूछता यह क्या है तो जवाब मिलता आप ही यहाँ की रीत है। लोग बादशाह के ख्याल से खामोश रहे, लेकिन जब बादशाह के आगे सबसे बड़ा कूंडा रखकर दलिया डाला गया तो बादशाह का गुस्सा अपनी आखिरी हथों को छूने लगा। उन्होंने उठा के कूंडा दूर फेंका और उठकर खड़े हो गए। हद होती है बेइज्जती और रुसवाई की। मैं चुप हूं तो तुम लोग सर पर ही चढ़े आ रहे हो। सारे दरबारियों की और मेरी बेइज्जती की है तुम लोगों ने। नहीं ले जाना मुझे तुम्हारी बेटी को, अपने पास रखो। मैंने उसे तलाक दी। बादशाह 3 तलाकें देकर गुस्से में भरे पैदल ही महल में वापस आ गए। कनीज़िया हार फूल लिए खड़ी थी, क्योंकि अम्मा जान को यकीन था कि आपके तो दुल्हन घर ही में आ जाएगी। वो खुद जाकर लड़की देख आई थी। बादशाह ने अपने कमरे में जाकर दरवाजा बंद कर लिया। हैरान परेशान अम्मा जान को बारातियों ने सारी रुदात सुनाई कि कैसे लड़की वालों ने बेइज्जती में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। अम्मा की आंखों में आंसू भर आए कि उनकी किस्मत में बहू और पोता खिलाने का सुख नहीं लिखा। टिनमिन ने खूब खूब तसल्लियां दी, बादशाह की वकालत की और उनके अमल को सही साबित करने की कोशिश की। दिन गुजरने लगे, लेकिन अब बादशाह के दिमाग में टिनमिन के किरदार को लेकर शक व शुबहात जन्म लेने लगे। शहजादी की कसम याद आई और अपनी 5 तलाकों का एहसास हुआ। बादशाह अब अपना खाली वक्त अम्मा जान के हुजरे में गुजारने लगे, जहां टिनमिन खड़ी रहती थी। कभी कहते अम्मा अपनी टिनमिन से कहिए मुझे पानी पिला दे। कभी कहते टिनमिन जरा मेरे पाँव दबा दो। टिनमिन ठनक कर कहती देख लीजिए बेगम साहब, बादशाह सलामत तंग कर रहे हैं। मेरा कोई कल पुर्जा टूट गया तो कौन ठीक कराएगा। मेरी शहजादी भी अल्लाह को प्यारी हो चुकी है। अम्मा जान बादशाह को डांटती, मत परेशान किया करो इसको। एक यही तो मेरी तन्हाई की रफीक है। बहू तो थी नहीं मेरी किस्मत में, ये टूट फूट गई तो मैं कैसे जीऊंगी। लेकिन बादशाह लगातार उसकी टोह में रहे। एक दिन वो अम्मा जान के हुजरे में ही सो गए। शहजादी का भूख से बुरा हाल था। काफी देर इंतजार किया। जब इत्मीनान हो गया कि सब सो गए हैं तो अपने काट से निकली। धीरे धीरे बावर्ची खाने से खाना लेकर लौट रही थी कि पीछे से बादशाह ने आकर कलाई पकड़ ली। घबराहट में सारा खाना जमीन पर गिर गया। बादशाह बोले आप कब तक बदला लोगी मुझसे। अब तो तुम्हारी कसम भी पूरी हो गई। मैं हारा तुम जीती, अब तो आ जाओ। शहजादी बोली आप अगर बादशाह है तो मैं भी शहजादी हूँ। खैर हम दोनों अपनी अपनी कस्में पूरी कर लें। अब मैं अपने बाप के घर जा रही हूँ। दोबारा बारात लेकर आइए और मुझे ले आइए, और हाँ अम्मा जान को भी साथ लाइएगा। शहजादी ने बादशाह से एक घोड़ा मांगा और उसी वक्त अपने मेके रवाना हो गए। बादशाह ने जब सुबह अम्मा जान को टिनमिन की हकीकत बताई तो वो खुशी से फूली नहीं समाई। फौरन महल में शादी की तैयारियां होने लगी। धूमधाम से बारात चढ़ी और दुल्हन को बड़े अरमानों से रुखसत करवा के महल में ले गए। पूरे महल में और शहर में खुशियां छा गई। शहजादी ने सबसे पहला काम यह किया कि उन चारों लड़कियों का शाही खर्च पर बेहतरीन इलाज करवाया, जिनकी तकदीर टिनमिन ने बर्बाद की थी, और फिर अमीर और शरीफ लड़कों से उनकी शादियां करवाई। अल्लाह ने जैसे उनके दिन फेरे ऐसे सबके दिन फेरे। यूं ये कहानी भी खत्म हुई। दोस्तों अगर आपको हमारी ये कहानी अच्छी लगी तो जाते हुए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं किसी ऐसी ही कहानी के साथ। तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।